Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. Let's start today's topic. Today we are going to discuss about the electric field intensity at any point due to this electric dipole. In the previous lectures, in the previous videos, we had studied about the electric field intensity at the axial line and on the equatorial line. Okay. Now we will discuss the electric field intensity at any general point, at any randomly point, right? So let's say here this K is a point at a distance r from the center O. This is center O of the dipole where minus q charge is placed at the point A and plus q charge is placed at the point B, and O is the center, right? And this K is the general point where we have to calculate the electric field intensity due to this dipole. Now as you can see that this K, when I will join this K to the point O, it will be placed at some angle theta, right? So let's just place it, let's just join it. Like this, right? Now this is at some angle theta, right? And this is my position vector r vector. This is my position vector r vector. Now this is a minus q charge and this is a plus q charge. So we all know that the direction of dipole moment is from minus q to plus q. So this is the direction of my dipole moment. So I will write it. This is the direction of my dipole moment, right? From minus q to plus q. As p vector is a vector quantity, so it can be resolved into two components. P vector vector quantity होती है, we all know this. So we can resolve p vector into two components along the angle theta, right? So we will resolve the dipole moment and then we will calculate the electric field intensity due to the two components of this dipole moment. So let's just write all these things step by step, right? K is a point at a distance r vector such that r vector makes angle theta with p vector. P vector is our dipole moment. Now this p vector is resolved into components. टू कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं इसको, एक अलॉन्ग द आर वेक्टर एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, राइट? सो फर्स्ट वन इज along r vector, that is p cos theta, and second one is normal to r vector which will be p sin theta, right? Now we have written this, so let's just draw our components. What will be p cos theta and what will be p sin theta? Along the theta like this, this will be p cos theta, okay, and perpendicular to it. तो perpendicular कैसे बनेगा? ऐसे, okay. So this will be my p sin theta component and this will be the p cos theta component. So we make the projection of p vector on this angle theta, that is one is p cos theta, right, and another vector which is perpendicular to this p vector, that is p sin theta. Actually we will find electric field due to this p cos theta and due to this p sin theta, and then we will add them up to get our resultant electric field, right? So now this p cos theta, this is along the axial line of the point K. अगर हम इस पॉइंट K को देखें तो ये पॉइंट K आपकी P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे है. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ई एक्सियल, राइट, ई एक्सियल। और अगर हम इस पी साइन थीटा की बात करें तो ये जो पी साइन थीटा है आपका पॉइंट के इस पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है। देखिए डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा आपका, अगर ये अगर ऐसे डाइपोल मोमेंट है आपका पी साइन थीटा कंपोनेंट, तो के इसके इक्वेटोरियल लाइन पर प्लेस होता है। हमने पीछे देखा था अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, अगर ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है, इस डायरेक्शन में जाएगा। सो वी विल मेक दिस, राइट। नाउ दिस इज अवर ई इक्वेटोरियल, right, this is the E axial and this is E equatorial. Now we will find out the values of E axial and E equatorial, and then when we will add them up we will get our resultant electric field. तो पहले हम पहले लिख लेते हैं, then we will find it. K is on axial line of P cos थीटा, देयरफॉर ई एक्सियल आपका कितना आएगा, ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। वहाँ पे 2p होता था, तो हम यहाँ पे p का cos कंपोनेंट ले रहे हैं। वी विल राइट 2p cos थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, नाउ k is on equatorial line of P sin theta, therefore equatorial will be equals to P sin theta divided by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब देखिए वहाँ पे सिर्फ p होता था, राइट, बट यहाँ पे क्या है, p का साइन कॉम्पोनेंट है, हमने लिख दिया p sin थीटा। ओके, सो हेयर वी हैव रिटर्न द वैल्यूज ऑफ electric field at the axis and the electric field at the equatorial line. Now we have to find the resultant. So हम resultant को draw कर लेते हैं. Say if this is the resultant, okay, अगर आपका resultant है and this makes an angle alpha, ठीक है, it will make an angle alpha, और ये आपके पास, हम इसे complete करते हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, राइट। सो बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन फाइंड दिस रिजल्टेंट ई वेक्टर। ओके, दिस इज योर, लेट्स से दिस इज के एन, सो दिस इज द ई रिजल्टेंट, दिस वन, राइट। सो हेयर वी विल फाइंड द ई रिजल्टेंट, राइट। According to parallelogram law, this Kn represents resultant intensity. आई होप आपको समझ में आ रहा है सारा। प्लीज़ मेक इट क्लियर, ये कंसेप्ट कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। ई वेक्टर एट के, ओके। सो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा आपका, ई रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू E1 ई एक्सियल का प्लस ई इक्वेटोरियल और इसका अंडर द रूट, राइट। और हम क्या इसका स्क्वायर करते हैं, याद है ना आपको, इनके मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट अप कर देंगे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ, कुछ नहीं है, इसके बाद सारी सिंपल मैथमेटिक्स है, पूरा कैलकुलेशन करना है आपने। ओके, सो हियर आई हैव रिटन द वैल्यूज़। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आप देख सकते हो ये कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा आपके पास, p भी बाहर निकल जाएगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये रह गया आपके पास, ऑलराइट। तो इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट। मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रही हूँ, प्लीज़
यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस, और अगर आपको लर्न नहीं होता है, कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, वैसे तो ईजी है बट यू कैन लर्न इट ऑल्सो, क्योंकि एग्ज़ाम में यू माइट डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप इसको सॉल्व करो, बट ये बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपसे कर सकते हो। सो व्हाट विल वी गेट, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई P/√3 cos के थीटा प्लस 1 बाई 4πε0r³। ओके, तो ये आपके पास जनरल रिजल्ट आ गया दैट वी वांट टू डिस्कस, राइट। अभी हमें डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, तो डायरेक्शन हमें पता है tan अल्फा से निकलता है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू E इक्वेटोरियल बाई E एक्सियल। ठीक है, दोनों का रिजल्ट आप रखोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट हाफ ऑफ tan थीटा, राइट। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब द क्वेश्चन इज, अगर ये आपके पास एक जनरल रिजल्ट है, ये रिजल्ट अगर जनरल है, तो क्या इस रिजल्ट से हम लोग इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? तो आंसर है येस, हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो हम पहले पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। ओके, मान लेते हैं अगर आपके पास एक डाइपोल है और के पॉइंट अगर उसके एक्सियल पे है, दैट मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, राइट। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो cos 0 डिग्री इज 1, and when we will put this value into our result, that is P/4πε0r³ √3 cos के 0 डिग्री प्लस 1, यहाँ पे आप जब cos 0 वैल्यू डालोगे 1 आएगा, 3 + 1 4, 4 का रूट कितना हो गया 2। सो दिस इज अवर रिजल्ट फॉर द एक्सियल लाइन, ये सेम रिजल्ट आता था, है ना। और इसी की तरह अगर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन के लिए फाइंड आउट करें, अगर आपका डाइपोल है और के को मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे प्लेस कर दिया, दैट मीन थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। सो cos 90 इज 0, अगर cos 90 0 है तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, P/4πε0r³ √3 cos के थीटा प्लस 1। नाउ थीटा इज 90 डिग्री, तो cos के थीटा हमने किया तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ +1 बचा, +1 का रूट 1 ही रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आ गई, P/4πε0r³। दिस इज अवर रिजल्ट। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि आपके पास ये जो रिजल्ट आया है ये कैसा है, जनरल फॉर्मूला है। आप इससे किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो डाइपोल में कहीं पर भी रखा हो, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So I hope this topic is clear to you. In the next class we will discuss further. If you find my teaching interesting and useful, please like, share and subscribe my channel, and stay safe, stay healthy. Thank you so much.